Yes, sir. सो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में स्वागत है आप सभी का। और हम लोग फोर्थ जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स कर रहे थे आपके साथ और पेज 6 तक आ गए थे। यहां से कर रहे हैं और रेट्स डिस्कस कर रहे थे। यहां पर ही ऑल्सो cautioned मतलब बिहार that the tax on poor should not be so low that revenue generation was adversely affected. He suggested that the proposed 26% rate could be made 28% and 6% rate could be increased to 8%. The Honorable Chairperson observed that GST would have some natural advantages such as single national market, seamless movement of trucks of states' borders, and elimination of cascading of tax through a seamless flow of input tax credit. The Honorable Minister from Telangana observed that the tax rates should be such that it promoted compliance. He suggested that luxury goods like luxury cars should be taxed at a higher rate. He added that, keeping in view the three principles that the tax should be revenue neutral, inflation neutral, and distribution neutral, there should be a higher band of 40%, as was also suggested in the report of Chief Economic Advisor. The Honorable Chairperson observed that the goods covered in tax bracket of 26 to 28% also included items like refrigerators and televisions, which were today also consumed by the lower middle class, and taxes on them could not be raised to 40%. It should also be kept in mind that the tax rate, Jammu and Kashmir, structure in India was 60 years. ये हम लोग शायद पढ़ चुके थे। हम लोग यहाँ आते हैं। The Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat suggested to keep tax on diamonds at the rate of 0%, keeping in view the fact that it accounted for export turnover of 2 lakh crore, providing employment to a large number of people in the diamond cutting and polishing industry, and was an environmental friendly activity. He also supported a low rate of tax on gold, as it was also used by the poorer sections of the society. अच्छा, ये गुजरात बोल रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। आज के डेट में डायमंड का रेट क्या है? किसी को कोई आइडिया? डायमंड का रेट क्या है? कोई गूगल करके पता लगाएगा? 0.25% होना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब एक्सपोर्ट के कारण इसका रेट इतना कम किया हुआ शायद, मे बी। अगर एक्सपोर्ट के कारण क्यों कम करेंगे? एक्सपोर्ट अगर हो रहा है तो अल्टीमेटली तो रिफंड मिल ही जा रहा है। अगर टैक्स दे रहे हैं तो आईटीसी का भी रिफंड मिल जा रहा है, और टैक्स दे दिया तो टैक्स पेड के कारण भी रिफंड मिल जा रहा है। चलिए देख लीजिएगा। ऑब्वियसली रेट कम है लेकिन डायमंड पे। गोल्ड पे कितना है? 1.5% है। 1.5%। अच्छा, 1.5% है इस पे। गोल्ड पे 3%। गोल्ड पे 3% है। करेक्ट, करेक्ट। चलिए, थैंक यू। तो इस पे 1.5% और गोल्ड पे 3%। किस पे 0.25% किस पे है फिर? 0.25% का भी रेट है ना? चलिए देख लीजिएगा। तो ऑनरेबल मिनिस्टर, अच्छा ये तो रहने देता है। On suggestion of having a higher slab rate of 40%, he reiterated that if GST rate was higher, the compensation kitty would be lower. He observed that at this stage a rate of 26% could be adopted, but after 5 years it could possibly be increased to 40%. तो जब सेस हटेगा तो ये 40% तक पहुंच जाएगा। He observed that as a direct tax rates were low in India, multiple rate slabs in GST were needed. Karnataka. He further observed that an unequal society like India could not have only one tax rate. He observed that GST was still beneficial as it simplified the taxation system, prevented cascading, and helped in more efficient economic decision making process. तो जब ये जीएसटी आ रहा था तो आपने पार्लियामेंट के डिबेट सुने होंगे, तो उसमें कांग्रेस ये कह रहा था कि 2 या 3 स्लैब ही होना चाहिए। लेकिन आप देख लीजिए कि डायरेक्ट टैक्स क्योंकि लो है, इसीलिए मल्टीपल रेट स्लैब इन जीएसटी वर नीडेड। और भी कई कारण आप देखें, एक्सपोर्ट के कारण जीएसटी के रेट्स कम है, पुअर पे नहीं लगे इसलिए जीएसटी के रेट्स 0 भी है, और लग्जरी गुड्स मतलब गोल्ड और जो वैल्यूएबल गुड्स है उन पे भी रेट्स बहुत कम है। He further observed that an unequal society like India could not have only one tax rate. जैसे सिंगापुर में सिंगल रेट है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में एवरीथिंग इज टैक्सेबल एट सिंगल रेट, चाहे वो कुछ भी हो, एनी टाइप्स ऑफ गुड्स, एनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज। बट इन इंडिया वी हैव सो मेनी स्लैब्स।
एक्साइज के जमाने में डिस्प्यूट किस चीज का होता था पता है आपको? मेजर डिस्प्यूट एक्साइज के जमाने में Tariffs? टैरिफ को लेकर, HSN क्लासिफिकेशन को लेकर Yes. डिस्प्यूट होता था। लेकिन आज जीएसटी में ये HSN क्लासिफिकेशन का डिस्प्यूट मैं बहुत कम देख रहा हूं। एडवांस रूलिंग में तो है, लेकिन हायर अथॉरिटी में बहुत बहुत कम है। तो मे बी कुछ क्लैरिटी है। चेयरपर्सन, और चेयरपर्सन इस वक्त अरुण जेटली जी थे। He observed that in the Indian context, a two-band rate would lead to either a steep increase or sharp reduction in the tax index, and both were not desirable. He observed that West Bengal. He observed that unprocessed and unpackaged food grains were exempted from VAT in 10 states: Assam, Gujarat, Delhi, Kerala, Madhya Pradesh, Rajasthan, Tamil Nadu, UP, West Bengal and Bihar, and therefore these must remain exempted under GST. अच्छा, आज के डेट में जीएसटी का रेट अनप्रोसेस्ड और अनपैकेज में क्या है आज के रेट में? 0.25%. नहीं, जीरो ही है, जीरो ही है। अब ये मान लीजिए जो भी जमीन से अंदर से निकल रही है या जमीन जो पैदावार कर रही है उन सब पे जीरो है, चाहे फल हो सब्जी हो। लेकिन अगर आप उसको प्रोसेस कर देंगे, जूस बना लेंगे, चिप्स बना देंगे, पैक कंडीशन में बेचेंगे, तब रेट है। चाहे 5 होगा या 12 होगा, 18 तो नहीं होगा, खाने वाली चीज। और यही खाने वाली चीज, जैसे चिप्स बना के मैं किसी चनाचूर के दुकान में, कोई आता है बोलता है सर 100 ग्राम चिप्स दे दो, तो मैं उसको वहीं पे उसी के सामने पैक करके दे रहा हूं, तो उस पर रेट जीरो है, आज भी जीरो है। ठीक बात है जी सर। The Honorable Chairperson observed that in the gold sector, the problem was not so much regarding levy of tax, but regarding problems of inspection and maintenance of books and accounts. अब तो गोल्ड सेक्टर में भी ई-वे बिल ले आए वो जी। किसी को एक्सपीरियंस है गोल्ड सेक्टर में ये ई-वे बिल कैसे काम करता है? फिर वापस ले लिया, वापस भी ले लिया इसको। हाँ, चलिए तो अच्छा कदम है, वापस ले लिया। वो ला भी नहीं सकते। हाँ, बहुत रिस्की है। हाँ, हाँ। तो बताइए लेके ही क्यों आए थे? क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यही कारण रहा। He observed that if tax on gold was to be reduced, some other goods. अच्छा एक बात बताइए, लेके आए जीएसटी काउंसिल मीटिंग के रिकमेंडेशन से, वापस किसके रिकमेंडेशन से ले लिया? उसके लिए तो मीटिंग हुई नहीं होगी। पोस्टपोन फिर कर दिया उन्होंने उसको, पोस्टपोन कर दिया। हाँ, तो रिकमेंडेशन ऑब्वियसली बाइंडिंग नहीं होता है। और रिकमेंडेशन है, उसमें कोई टाइमलाइन भी नहीं होगा कि इस डेट तक आपको इंप्लीमेंट करना है या एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो वापस लेना आसान है। लेकिन एक बात बताइए, आप कह रहे हैं वापस ले लिया, लेकिन मुझे एक चीज और याद आ रही है, टेक्सटाइल में इन्होंने रेट स्ट्रक्चर चेंज किया था। शुरू में किया था। हाँ हाँ, बीच में किया था। उसको वापस लेने के लिए उन्होंने फिर से जीएसटी काउंसिल मीटिंग की बुलाई थी और सिर्फ इसी पे डिस्कशन हुआ था और वापस लिया था, करेक्ट है? यस यस यस। ये कैसे वापस हुआ फिर? जो टैक्सेशन वाला मैटर है वहां पे टैक्स कम बेसी करना रहता है, तो वहां तो मजबूरी है। लेकिन यहाँ पे कोई टैक्स का तो कोई बात ही नहीं आया। हाँ, प्रोसीजर है सारा, तो सारा प्रोसीजर है, इसलिए उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया। ओके ओके, मे बी एक बार चेक कर लीजिएगा कैसे विड्रॉ कैसे हुआ है, एक बार जरूर से चेक कीजिएगा। ठीक सर। He observed that if tax on gold was to be reduced, some other goods would need to bear this tax burden. The Honorable Minister from West Bengal further observed that increasing existing tax rate of 5% to 6% would adversely affect items like cotton, edible oil, newsprint, spices of all varieties, vegetable oil, micronutrients, biofertilizers, etc.
He therefore supported the view of the Honorable Minister of Kerala that the existing rate of 5% under VAT should be retained instead of raising it to 6%. In respect of goods falling under 26% bracket, he stated that the existing combined rate of tax was higher for goods like air conditioner पे pre-GST regime पे 30.31%, cameras and video cameras पे 30.31%, इलेक्ट्रिक टोस्टर पे 30.31%, पेंट्स इतना। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं, जो शुरुआत के एक्सपीरियंस रहे मेरे, मैं शायद कुछ मार्केट में कुछ खरीदने गया था, उसमें मुझे रेट 28% नजर आ रहा था। प्री जीएसटी रिजीम में मुझे रेट 28% नजर आता था। मुझे तो सिर्फ वैट का बर्डन नजर आता था 12%, 12.5% या 14%। ठीक बात है। हाँ। पब्लिक को क्या लग रहा है कि पहले मैं 12% देता था, अब कितना दे रहा हूं? 18%, 28% दे रहा हूं। 28%। हाँ, तो लोगों ने बहुत यूट्यूब वीडियो बनाया कि सरकार ऐसी है वैसी है, लेकिन ये रीजन आप देख रहे हैं, ये रीजन है। He therefore suggested increasing the proposed rate slab of 26 to 28%, which would net additional revenue of 34,000 crore, and out of this 17,000 crore would fall into the share of each of the center and states. He added that center would retain an amount of 10,039 crores after devolution. ये इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं आप? आफ्टर डिवॉल्यूशन देखिए, ये 34,000 तो दो पार्ट में बट गया, सी और एस के बीच में। लेकिन जब सी के पास जितना पैसा आया है, कितना आया है? 17,862 करोड़ आया। नीति आयोग, इसका इंग्लिश नेम था फाइनेंस कमीशन। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम लोग शायद आर्टिकल 270 या 271 पढ़ रहे थे, गवर्नमेंट क्या करती है? 17,862 करोड़ यानी कि सेंटर, ये भी पैसा स्टेट में बांट देती है एज पर नीति आयोग रिकमेंडेशन। तो हर साल के लिए अलग अलग रिकमेंड करती है। मान लीजिए वो किसी साल के लिए 70% रिकमेंड करती है, तो इसका 30% किसके पास बच जाएगा? स्टेट के पास बच जाएगा, है ना? तो ये रिकमेंडेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कितना डिवॉल्यूशन हो रहा है स्टेट के पास, रिटेनिंग। हाँ, कितना रिटेन कर पा रही है। Okay. Summing up his proposal, he said that there should be 5 rates of, ये मुझे लगता है चेयरपर्सन बोल रहा है, अच्छा, of 0% for food grains, 5, 12, 18, 28 and 40, and the officer should fit the goods into the slabs of 12 and 18%, taking into account the inflationary impact. He observed that some logical adjustment could also be done for goods falling in the slab of 28%. सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस 5 स्लैब में क्या हुई, जो आज तक हम लोग सब झेल रहे हैं या डिपार्टमेंट गवर्नमेंट झेल रही है? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ये देखिए, मैं आपको बताता हूं प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन, मैं आपको बता रहा हूं। आप अगर हमारी पहली क्लास जो जीएसटी का जन्म कैसे हुआ, बर्थ ऑफ जीएसटी, उसके प्रिंसिपल्स आप पढ़ेंगे तो ये बहुत आसान है समझना। जीएसटी में गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलता है? मान लीजिए मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, उसके बाद होलसेलर के पास गया, उसके बाद रिटेलर के पास गया, उसके बाद कंज्यूमर के पास गया। अल्टीमेटली इस पूरे चेन में गवर्नमेंट को टोटल टैक्स कितना मिलता है? मान लीजिए ये 100 में बिका, ये 120 में बिका, ये 130 में बिका, ये 140 में अल्टीमेटली बेच रहा है। सब पे रेट 10% है एट एवरी स्टेज। तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली कितना टैक्स मिलेगा टोटल किट्टी में? कोई बताएगा कितना? 30%? नहीं, 40? 10% ऑफ 140 यानी कि 14 रुपए ही मिलेंगे। हाँ जी जी जी, हाँ, यस, है ना? लास्ट पॉइंट टैक्सेशन सिस्टम की तरह काम करेगा ये, करेक्ट है? यस यस यस। अब रिटेलर जब कंज्यूमर को कोई भी चीज बेचेगा तो फाइनल गुड्स बेचेगा। यस, मैन्युफैक्चरर रॉ मटेरियल खरीदेगा, तो रॉ मटेरियल जब वो खरीदेगा तो इसके ऊपर रेट कम होना चाहिए जी, क्योंकि इसके ऊपर जो 10 रुपया का टैक्स है वो तो गवर्नमेंट को मिल ही नहीं रहा, वो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको मिल जाएगा, फिर इसको मिल जाएगा, फिर इसको मिल जाएगा।
तो रॉ मटेरियल पे हमेशा टैक्स कम होना चाहिए, फाइनल गुड्स पे हमेशा टैक्स ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा। ठीक बात है, Yes. यही प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए। लेकिन ये 5 स्लैब रेट के कारण हुआ क्या, रॉ मटेरियल पे ज्यादा हो गया, फाइनल गुड्स पे कम हो गया, जिसके कारण आपका आउटपुट टैक्स अगर मान लीजिए 10 है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मान लीजिए 15 है, तो आपका 5 तो बार बार एक्यूमुलेट कर रहा है। जी। इसी को इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, हम्म, और इसी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड ले रहे थे वो। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि हम कुछ गुड्स के लिए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण हम रिफंड नहीं देंगे, नो रिफंड। और इसमें कुछ फॉर्मूलाज पुट कर दिए कि सर्विसेज का रिफंड नहीं देंगे या फिर किसी गुड्स का रिफंड नहीं देंगे, जो गुड्स इस फाइनल गुड्स को बनाने के लिए यूज हुआ सिर्फ उसी का रिफंड देंगे, बाकी का नहीं देंगे। तो ये सब तमाम चीजें उसमें कंडीशंस लगा दी। अगर रेट स्ट्रक्चर इस तरह से भी, और पूरे मिनट्स में आप देखिएगा ये चीज कहीं डिस्कस ही नहीं हुई है। मैंने तो अभी तक 7-8 पढ़े हैं, कहीं नहीं मिला मुझे। चलिए, he added that tobacco was truly a sin good, which goods, sin goods, which adversely affected the lungs of the human beings. There was an official level meeting for 1 hour to aid the honorable ministers in deciding whether the proposed slab of 6% could be reduced to 5%, the proposed slab of 26% could be increased to 28%. The proposed slab on gold could be reduced from 4% to 2%. अच्छा, पहले 4% था, अब उन्होंने 3% फिक्स कर दिया। एवरेज निकाल लेते हैं जहां डिसीजन ना मिले तो। एंड वेदर ए न्यू स्लैब ऑफ 40% कुड बी इंट्रोड्यूस्ड। तो 40% इंट्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ? हेलो, ये हुआ है, it says 40% अभी भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, मैक्सिमम स्लैब रेट है अभी भी, है ना? The Honorable Minister from Tamil Nadu stated that as service tax was proposed to be raised from 15 to 18% on goods side, duties could be reduced on a significant number of commodities. Good. Gold could be one of them, as Mangal Sutra had important cultural and emotional aspect in his state, Tamil Nadu. सही बात है, सर्विस टैक्स में 3% एक्स्ट्रा आ रहा है तो कुछ गुड्स में कम कर दीजिए आप। Summing up the discussion, the Honorable Chairperson suggested the following bands of rates under GST. One category of items like food grains, etc., shall be exempt from GST. A lower rate of 5% for goods consumed by vulnerable sections of the society. ये स्पेलिंग ठीक है इसकी? चलिए, standard rates of 12 and 18 and a higher slab rate of 28% and cess over and above 28%. Committee of officers do the fitment for placing various goods and services into the above tax slab. यानी कि उन्होंने पहले स्लैब डिसाइड कर लिया, 0, 5, 12, 18, 28 और सेस। इसके बाद ये स्लैब डिसाइड होने के बाद कमिटी ऑफ ऑफिसर्स को कह दिया कि जितने भी गुड्स है और सर्विसेज है इनको इन स्लैब में फिट करते रहो। तो पहले मतलब कोई पूछे कि कैसे ये रेट डिसाइड हुआ, तो दिस इज द प्रोसेस। A committee of officers shall do the fitment for placing various goods and services into the above tax slabs, including the item which shall fall into exempt category. Cess over and above 28% on goods like luxury cars, rated drinks, pan masala and tobacco products shall be imposed for the purpose of raising resources for payment of compensation to the states on account of any loss of revenue due to implementation of GST. He added that any surplus left in the cess compensation fund would be shared between center and states, and that there should be a sunset clause for imposition of cess after 5 years. He further suggested that there could be a review every year by the council to examine that what cesses could be subsumed into GST tax. He added that officers would also examine as to what items presently attracting combined tax rate of 28% could be put into 18% slab. ऐसा किया गया ना? बहुत सारे गुड्स को 28% से 18% में लेके आए ड्यूरिंग द ये 5 साल में। He also added that अरे कोई भी गुड्स को 18 से 28 में नहीं ले गए थे,
28 से 18 में तो आया है, लेकिन कोई भी 18 से 28 में मुझे याद नहीं आ रहा है. He also added that for luxury goods, the present incidence of taxation would be maintained. He further added that tax rate on gold could be kept open till the completion of fitment exercise of goods into bands of 12 and 18% by the officers and reporting back to the council. तो ये एक पॉलिसी डिसाइड होके ऑफिसर्स को दे दिया गया. Now they will be doing the exercise. The Honorable Minister from Jammu and Kashmir observed that as states were insulated for the next 5 years with an assured 14% revenue growth, this issue need not be discussed much. The Honorable Minister of Punjab stated that not only food grains but also fertilizers, insecticides and pesticides should be zero rated. Zero rated का मतलब होता है एक्सपोर्ट, और वो बेसिकली पंजाब वाले कहना चाह रहे थे कि exempted होना चाहिए, लेकिन उन्होंने लिखा zero rated. So एक्सप्लेन करेंगे. The Honorable Chairperson clarified that there was a difference in zero-rated goods and exempted goods. If the product was kept at zero rate, the implication was that all ITC embedded. और zero-rated में ITC मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है. Exempted होगा तो ITC नहीं मिलेगा. वही समझा रहे हैं. Yes. The implication was that all input tax is embedded in the product would need to be refunded. Zero-rated का मतलब ये होता है. The revenue implication for this would need to be studied. अच्छा, एक बात बताइए, आज के डेट में फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स पे रेट एग्जेम्प्टेड है या टैक्स लग रहा है? टैक्स लग रहा है. Taxable. 5%. Yes. 5%. ठीक है. अगर जीरो है तो बता जरूर दीजिएगा. इन व्यू ऑफ द अबव डिस्कशन, टैक्स रेट्स मैं अपने मेमोरी के बेसिस पे बोल रहा हूं, तो हो सकता है मैं गलत भी हूं, इसीलिए डबली चेक. इन व्यू ऑफ द अबव डिस्कशंस, for agenda item 3, the council adopted the following decisions in respect of band of rates of tax in the GST regime and the compensation mechanism for 5 years. तो 5 साल तो हो गए. पांच साल बाद सेस कितने साल और बढ़ा दिया गया? 3 साल. हेलो राजेश जी बता रहे थे शायद 3 साल और बढ़ा दिया गया. 2 साल और बढ़ा दिया गया. अच्छा, 2 साल ही बढ़ाया गया है. और जो अगले उसके बाद जो 1 साल और बढ़ाएंगे उसमें बढ़ाएंगे. हाँ, उसमें जो ब्याज, उसमें जो पैसे आएंगे वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे स्टेट्स में. वो उन्होंने कहा कि जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ उसको एडजस्ट करूंगा. कौन सा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं? जो राज्य जिनको लोन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया ना कोरोना काल में, इनके पास. अच्छा, ओके ओके. लेकिन अभी वो रिमूव करने के मूड में नहीं है, अभी वो लेना चाहते हैं. नहीं, रिमूव कर भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, उनको पास पूरा अधिकार है. 20 जो भी सेस हटा के उसको सब्ज्यूम कर देंगे, जीएसटी में 40% कर देंगे. हाँ, है ना. चलिए. क्रॉस एम्पावरमेंट, कितने ऑप्शन पढ़े थे हमने? 5 ऑप्शन पढ़े थे, याद है आपको? हमने कहा था 5th ऑप्शन होना चाहिए. He recalled that in the last meeting of the council, 5 options were placed before the council to achieve single interface and the GST, and out of these, the first 3 options stood eliminated on account of various. The first 3 options stood eliminated on account of various considerations, like unacceptability to either the central government or the state government, or due to practical problems like distinguishing between the supplier of goods and services as for restaurant. He suggested considering option 4 or 5. He pointed out that keeping in view the fact that GST would work in a highly automated environment, it could work on the same model as a direct tax, where the assessee did not know his assessing officer unless his return was picked up for scrutiny. Option 4 was based on this concept, in which an upper cap of 5% could be put for auditing the taxpayers. This 5% could be chosen on the basis of risk parameters and then divide such assessee between the center and state administration at the state level based on factors like nature of business, geographical proximity, etc. The option 5 envisages dividing the taxpayer based on some ratio in order to facilitate the taxpayer to know who would be his assessing officer. He expressed that indirect tax was also moving towards minimal human interface,
it might not be relevant to provide for a system where the taxpayer has to be looked after by a particular tax jurisdiction. बताइए कौन सा ऑप्शन चुना गया अल्टीमेटली, ऑप्शन 4 या 5? 5, ऑप्शन 5. 5. ऑप्शन 4 तो गया ही नहीं वो, क्योंकि 5% बाकी मतलब फेसलेस टाइप का नहीं गया, ये तो बेसिकली फेसलेस था, तो दिस वाज नॉट ऑप्टेड. He pointed out that the registration were to be done by GSTN and all registration were deemed to be done within 3 working days. आज के डेट में क्या है? आज के डेट में 3 working days है? No. They नहीं, take their own time. They take their own 20 7. days. No, 20 days is there. नहीं, as per law कितना दिन है? 7, no. 7 है. अब उन्होंने हाँ 3 कमेंट करके they have done made it to 7 working days. और ऑब्वियसली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो है 20 days 15 days, डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट मांगते रहो. 3 working No, days. now they have a physical verification. So that's why they are increased to 20 days. No. They What I'm saying कि 7 working days will start when all documents and physical verification are done. Yeah. The commencement of date of 7 working days starts from when the officer is satisfied. Correct? Officers are never satisfied. They keep on asking irrelevant documents. Yes. मेरे पास एक केस आया था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन दिया नहीं. बोला क्यों नहीं दिया भैया? बोला सर है ना, आपके आधार कार्ड में जो फोटो है और आपका जो एक्चुअल फोटो है वो मैच नहीं कर रहा, इसलिए नहीं देंगे. चलिए, किसी का मैच करता है? सिमिलरली खुद भी नहीं करे होगा. हाँ, उसका खुद का नहीं कर रहा होगा, ठीक बात है. बोला सर आप अपना आधार कार्ड निकाला, देखें फेस मैच कर रहा है या नहीं. सिमिलरली payments were done on the GSTN and it went to the respective states. The GSTN also, अच्छा ऐसा होता है? एक मिनट. अच्छा ये ऑटोमेटिक है क्या? Similar payments were done on the GSTN and it went to the respective states. इसको समझते हैं. ये मान लीजिए एक आपने कैश लेजर में पैसा डाला, यस और नो? कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? PMT 06 चालान. कैश लेजर में I में, C में और S में पैसा डाल दिया, ठीक है, और सेस में पैसा डाल दिया, मतलब सब में 100 डाल दिया, ठीक बात है. क्या कैश लेजर का पैसा स्टेट के पास या सेंटर के पास ऑटोमेटिक जाता है? हेलो? हाँ. नहीं. No, sir. आप 3B के साथ एडजस्ट करेंगे, 3B जब फाइल करेंगे, जब एडजस्ट होगा तभी तो जाएगा. जी सर. तो ये C का पैसा तो ऑटोमेटिकली सेंटर के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा. हर एक स्टेट का ऑटोमेटिकली स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा. सेस का तो अलग से फंड बनाया हुआ है, आई का भी अलग से फंड बनाया हुआ है. हेलो? जी. तो GST इतना काम कर रहा है, ये आइडिया नहीं था मेरे को. The GSTN also handle the front end process for return, including throwing up mismatches for input tax credit claims. He emphasized that as the basic process were taken care of by the GSTN, there was a move towards a system where the taxpayers did not know his administrator. He further pointed out that the areas of contact were limited to returns or mismatches, and for this, administrations could proceed further by scrutiny or audit process. He further pointed out that the enforcement needed to be handled independently. He urged that in a scenario where interaction was reduced, option 4 was the most desirable, in which both administrations would administer the entire tax base, but they would largely be driven by concerns of audit and information.
तो आने वाले समय में वी विल मूव टुवर्ड्स ऑप्शन 4 मे बी और 3 साल बाद। He also pointed out that हाँ हो सकता है सर, ठीक बात। आजकल तो उनको बहुत पावर्स दे रहे हैं सब। He also pointed out that in direct tax, all returns landed in Bangalore, and in customs, all bill of entry landed in Mumbai, though they might have been filed in Tuticorin or Haldia, and then, if needed, an alert was sent to Tuticorin or Haldia. The Honorable Chairperson observed that in the GST system, all returns would land in GSTN, where analysis would be by computers and suspicious returns would be thrown up for scrutiny. आजकल कौन सस्पिशन रिटर्न बता रहा है? किस डिपार्टमेंट को अपॉइंट किया गया? डीजीआर। डीजीआर में तो बता रहा है। यस सर। Yes. And the problems of lack of distinction between goods and services for certain sectors like works, contract and restaurants, इसको तो कर ही दिया, शेड्यूल 2 में डाल दिया। शेड्यूल 2 में डालने के बाद तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो आइटम शेड्यूल 2 में नहीं है उसको हम लोग एनालिसिस करना पड़ता है, ये कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई है। ठीक बात है? हेलो, मैं फिर से बता रहा हूं, आज सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। उसी से प्लेस ऑफ सप्लाई पता लगेगा, उसी से रेट्स ऑफ टैक्स पता लगेगा, उसी से टाइम ऑफ सप्लाई पता लगेगा, उसी से आईटीसी कब लेना है ये पता लगेगा। करेक्ट है? तो अब ये सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज है, जब मिक्स होता है, मान लीजिए गुड्स प्लस गुड्स का सप्लाई है, गुड्स प्लस सर्विसेज का सप्लाई है, या सर्विसेज प्लस सर्विसेज का सप्लाई है, तो ये डिसाइड कैसे होगा ये कौन से गुड्स का सप्लाई है? गुड्स प्लस गुड्स का सप्लाई है तो कौन से गुड्स का सप्लाई है? गुड्स प्लस सर्विसेज का तो ये गुड्स है या सर्विसेज, और सर्विसेज प्लस सर्विसेज का कौन सा इसमें प्रिंसिपल सप्लाई है। ठीक बात है? तो या तो आप शेड्यूल 2 में चले जाइए, शेड्यूल 2 में सारे जो लिखा हुआ गुड्स प्लस सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है? वर्क्स, कॉन्ट्रैक्ट, रेस्टोरेंट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तमाम चीजें लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है? और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ अब ये गुड्स है या सर्विसेज है वो भी डिसाइड करना पड़ता है। तो शेड्यूल 2 एकदम साफ साफ स्ट्रक्चर बताया हुआ है, या तो ये गुड्स का सप्लाई है या सर्विसेज का सप्लाई है। ठीक बात है? Yes, अगर कोई शेड्यूल 2 में फॉल नहीं करेगा, देन वी हैव टू चेक कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई। तो ये प्रोसेस है, सबसे पहले शेड्यूल 2 में देखें, शेड्यूल 2 में फॉल नहीं करेगा, देन यू चेक कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। ठीक बात? कल या परसों मेरे पास एक फोन आया था, तो उसने वो अप्लाई नहीं किया कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई, तो कंफ्यूज हो रहा था क्या करें। मुझे एग्जांपल याद आएगा, आपको सवाल याद आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। And that too much interaction between taxpayers and tax administration would lead to harassment and corruption. ये वर्ड जरूर लिखिएगा, harassment, corruption मत लिखिए कभी भी नोटिस में, harassment लिखिए। He observed that as a fairly large number of potential assessees were outside the tax net, the most important priority was to bring them into the tax net through enforcement action, मतलब जबरदस्ती। And for this, both administration needed to work together to expand the taxpayer base. The Honorable Chairperson observed that the House needed to work on a model which kept both the tax administration fruitfully busy. ये भी गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज है कि एक्साइज में ब्यूरोक्रेट्स और सर्विस टैक्स के ब्यूरोक्रेट्स, एक्साइज और सर्विस टैक्स तो एक ही तरह से एक ही ऑफिसर्स काम करते थे, डिवाइड कर दिया था उन्होंने। बाकी स्टेट के सारे एम्प्लॉइज, उनको बिजी भी तो रखना है। आज मुझे एक बात बताइए, डायरेक्ट टैक्स में जब फीसलेस हो गया तो ऑफिसर्स कर क्या रहे हैं? डायरेक्ट टैक्स फीसलेस हो गया, रिटर्न फाइलिंग सारा कंप्यूटराइज हो गया, तो ऑब्वियसली मैन पावर की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गई। अब इनको फ्रूटफुली बिजी रखने के लिए इनको कुछ कोई काम देंगे या नहीं देंगे? तो क्या काम देंगे? आप देखिए डायरेक्ट टैक्स के ऑफिस में पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट काम में सिर्फ भरे रहते थे, कॉस्ट अकाउंटेंट ये सब। आज आपके शहर में भी जो डायरेक्ट टैक्स का ऑफिस है, शायद वहां पर कोई जाता नहीं है कि जाता है? नहीं जाता, खाली पड़ा हुआ रहता पूरा ऑफिस। जी, स्टाफ भी कम कर दिया उधर।
अच्छा, स्टाफ कम कर दिया, कहाँ गए हाँ, वो staff? आउटसोर्सिंग का जो था ना वो कम कर दिया उन्होंने, अच्छा, आउटसोर्सिंग जो था वो कम कर दिया, ओके। कम कर नहीं, दिया। पहले वो मतलब स्क्रूटिनी का वगैरह रिटर्न्स के लिए वो स्क्रूटिनी होता था, तो हाँ, ऑर्डर बनाने के लिए सब काम करने के लिए चलता था, लेकिन अभी तो कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं है। हाँ, ठीक नंबर है, ऑफ स्क्रूटिनी भी कम हो गया है। नंबर ऑफ स्क्रूटनी भी कम हो कम हो गया। गए। हाँ हाँ, तो अब ये झारखंड मिनिस्टर कह रहे हैं कि ऑप्शन 4 में गए तो वो चिंतित है कि भैया स्टाफ को कैसे बिजी रखें, तो स्टाफ बिजी हो जाएगा, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। एंड मे बी ए सिक्स्थ मॉडल कुड बी एक्सप्लोर्ड फॉर एन इक्विटेबल, अच्छा, distribution of work, 5 ऑप्शन के बाद सिक्स्थ मॉडल। He further observed that distribution of taxpayers should not be one-sided both by the number of taxpayers and quantum of revenue। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे झारखंड में एक टाटा स्टील है और सेल है। टाटा स्टील का जुरिडिक्शन सेंटर है, सेल का जुरिडिक्शन भी सेंटर होना चाहिए, बहुत बड़ी कंपनी है। हाँ। का जुरिडिक्शन स्टेट है। तो सेल के ऑफिसर जब हमारे सेमिनार में आते हैं तो हमेशा रोते रहते हैं, बोला देखिए ना, हम लोग को स्टेट दे दिया गया है, मतलब झारखंड लड़ाई करके सेल को अपने पास रख लिया है। बोला मतलब कॉम्प्रोमाइज हुआ, जो उन्होंने बताया, मुझे नहीं पता इसमें सच्चाई कितनी है, कि सेंटर और स्टेट वालों ने कहा कि भैया कोई झारखंड हट गया, कोई एक दे दो, या तो टाटा स्टील दे दो या सेल दे दो। तो टाटा स्टील सेंटर में चला गया। अब झारखंड वाला सेंटर से कैसे लड़ेगा, सेल तो पीएसयू है, कोई पढ़ेगा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, कौन पढ़ेगा? वनश्री, हाँ वानीश्री, सर। पढ़ेंगे हाँ, आप? ठीक है, यहां से पढ़ो, सिर्फ येलो पढ़ना है। The proportion of tax officials of the center and the state, where the state officials were possibly 5 times more than the central officials. करेक्ट, ठीक है, तो स्टेट में 5 गुना ज्यादा है कंबाइंड, और And only 90,000 service tax payers were to be left below the turnover of 1.5 crores. Then such assessees would avoid payment of tax by splitting up their operations. अब देखिए, समझिए इस चीज को, ये कहना क्या चाह रहा है, इनको सब पता है क्या क्या जुगाड़ सिस्टम में चल रहा है इंडिया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक्साइज के जमाने में एक्साइज का रजिस्ट्रेशन कब कंपलसरी था? एक्सीडिंग 1.5 करोड़, 1.5 crore, yes. सर्विस टैक्स में 10 lakhs, above एक्सीडिंग 10 lakh, 10 lakh. एक्साइज का बताता हूँ आपको स्टोरी। एक्साइज में जो रजिस्ट्रेशन होता था, पैन बेस्ड होता था या फैक्ट्री बेस्ड होता था? Factory based, फैक्ट्री बेस्ड, यानी कि हर एक फैक्ट्री का अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, पैन बेस्ड तो था ही। अब आप समझिए, मेरी एक फैक्ट्री ये है, इसमें 10 मशीन रखी हुई है, और इसमें ए भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और मैंने एक बी को भी दे दिया, बी भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक बात है। ए का टर्नओवर इस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से आ रहा है, मान लीजिए 1 करोड़, बी का भी आ रहा है 1 करोड़, ठीक बात है। क्या इस फैक्ट्री को रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? यस, क्लबिंग करना पड़ेगा। क्लबिंग करना पड़ेगा, करेक्ट, Yes. क्लबिंग करना पड़ेगा। इन जीएसटी में देखिए, ए का टर्नओवर है 15 लाख, बी का भी टर्नओवर है 15 लाख, इसी फैक्ट्री में दोनों मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है? yes. नहीं, नहीं है, क्योंकि जीएसटी में क्लबिंग नहीं है, एक्साइज में था। समझ में आ रहा है आपको? आज अगर मैं 20 लाख फिक्स्ड है, तो लोग क्या कर रहे हैं, हस्बैंड और वाइफ स्प्लिट कर दे रहा अपना ऑपरेशन।
एक ही जगह में मान लिया husband wife both are chartered accountants. They can run as a partnership firm, but they are running their business individually. इनका भी टर्नओवर 19 लाख, इनका भी टर्नओवर 19 लाख, बताइए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है? नहीं। No, no, पैन no. पैन बेस्ड है, पैन बेस्ड Yes. नहीं है। अब देखिए एक बड़े से ऑफिस में जिसका रूम का साइज 40 बाय 40 है, इसमें 10 लोग अपने टेबल लगा के बैठते हैं। आपको याद कीजिए जब हम लोग डिमांड एंड रिकवरी की क्लास कर रहे थे, याद है आपको? मैं आपको एक जजमेंट हमने पढ़ाया था जहां पर रेड हुई थी, दिखाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग था। इतना बड़ा रूम, ये एक टेबल ये जिसमें फादर बैठ रहा है यानी कि ए, उसका वाइफ का चेयर, इसके बेटे का, इसकी डॉटर का, ठीक है, और इनका अपना अलमीरा, इनका अपना अलमीरा, इनका अपना अलमीरा, इनका अपना अलमीरा। रेड करने आए इसके यहाँ, एक यहाँ, रूम तो एक ही है, इसका अलमीरा भी खोल लिया, इसका अलमीरा भी खोल लिया, इसका भी अलमीरा खोल लिया। INS 01 में जिसका नाम होगा उसी का रेड होगा, एड्रेस सेम, लेकिन नाम अलग, नाम तो एक का था। तो कोर्ट में कंटेस्ट हुआ, बोले सर इसका क्यों खोल लिया, और इसका पेपर इसके साथ रिलेट करने लगे, बोले सर इसका तो ऑथराइज ही नहीं था, इसको एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट ही मत करो। कोर्ट ने मान लिया, है ना? तो एक अब इसका इन सबका टर्नओवर मान लीजिए 6 लाख एवरेज है, लेकिन एक ही जगह एक ही रूम में है उनका, तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है? नहीं है, पैन बेस्ड है। चलिए, तो ये जो कह रहे हैं देन सच एसेट वुड अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्स बाय स्प्लिटिंग अप देयर ऑपरेशंस, इनका वैलिड पॉइंट था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं जीएसटी में। ये तो और मतलब ऐसे ही सेपरेट रजिस्ट्रेशन इन ईच स्टेट प्लस ये तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 और कॉम्प्लिकेट कर रहा था चीजों को। यहां से पढ़िए। Both administrations should be empowered to take information-based enforcement action, and there should be no exclusion of jurisdiction. और ऐसा आज भी है, स्टेट का इंटेलिजेंस और सेंटर का इंटेलिजेंस और दोनों का ऑडिट विदाउट जुरिडिक्शन, मतलब उनके वो, क्योंकि सेंटर का इंटेलिजेंस और ऑडिट का ऑल इंडिया जुरिडिक्शन है और स्टेट का इंटेलिजेंस और ऑडिट उस स्टेट का जुरिडिक्शन है, तो नो एक्सक्लूजन ऑफ जुरिडिक्शन से एनफोर्समेंट टेक किया जा रहा है। ठीक बात है? ठीक है, यहां से पढ़िए। He observed that the Central Tax Administration did not have officers to reach taxpayers at the taluka and the block level, and the revenue paid by the taxpayers below rupees 1.5 crore turnovers was very small. The Honorable Minister from Telangana also supported this view and observes that the state officers were present in every nook and corner of the state, and experienced officers could deal with large taxpayers. ठीक है, आप किसके, एक मिनट, जिनेश जी को म्यूट किया, जयश्री को। यहाँ पढ़िए। He further observes that the discussion also needed to focus on how to check tax evasion. ठीक है, हाँ। Was that such taxpayers were located in small cities and they could interact in this same language with the officers. अभी ऑप्शन सारे डिस्कस किए जा रहे हैं, जहाँ प्रॉब्लम्स बताए जा रहे हैं। The Honorable Minister from West Bengal observes that the state government had their manpower in small talukas, but the central administration has none. इसीलिए वो मतलब these are the grounds जहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमें jurisdiction दे दो। आगे। With the modifications that the taxpayers in the sectors of hotel, restaurants and work contract should be with the states. छत्तीसगढ़ बोल रहा है। The Honorable Chairperson summing up the discussion observes that broadly two suggestions had emerged. One was to have a horizontal division with taxpayers below 1.5 crore turnover,
to be with the states and those above to be administered on cross empowerment model, and the second was to divide the taxpayers vertically between the center and the state administrations. He observes that these two options or a mix of the two needed to be further discussed informally to find a political solution. पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहिए. चलिए, तो दिस वी कंप्लीटेड. एक बोला खोल लेता हूँ. फिफ्थ Fifth meeting, 2nd and 3rd December 2016. ये एजेंडा पढ़ लेते. एजेंडा क्या था? ड्राफ्ट जीएसटी लॉ एंड ड्राफ्ट आईजीएसटी लॉ एंड ड्राफ्ट जीएसटी कंपनसेशन. अब ये ड्राफ्ट, अच्छा, इस पे डिस्कशन होगा. चलिए, मॉडल लॉस पे चलिए पढ़िए. The Honorable Minister from Kerala observes that after the constitutional amendment, the states had lost the bargaining power and had been reduced to the level of a municipality. But on the administrative issue, power of state level was very important and this could not be compromised. ठीक है. अब डेफिनेशन पढ़ते हैं. अब देखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 78106 ये डेफिनेशन है, मॉडल जीएसटी लॉ का है. तो आप एग्जैक्ट उसमें अगर आज के डेट में देखेंगे, हो सकता है 27 जो डिस्कस कर रहे हैं एग्रीकल्चरिस्ट का डेफिनेशन है, तो हो सकता है वो 27 में नहीं हो, कहीं और हो, लेकिन बाई चांस 27 ही है आज भी. पढ़िए. Definition of agriculture. अच्छा, मैं एक मिनट, पढ़ने से पहले मुझे एक बात बताइए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे टैक्स है या नहीं? पहले वो बताइए. नो सर. नो 24 नहीं है. सेक्शन 23 में नहीं है. 23 में तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है. सॉरी, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है एग्रीकल्चर. अब देखिए, पहले मैं एग्जाम्पशन बताता हूँ क्या है. एक एग्रीकल्चरिस्ट यानी कि फार्मर, क्या क्या एग्जाम किया गया? इसका आउटवर्ड सप्लाई और इसका इनवर्ड सप्लाई. इनवर्ड सप्लाई गुड्स और सर्विसेज दोनों का होगा. आउटवर्ड सप्लाई सिर्फ सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई गुड्स का ही होगा. हाँ, गुड्स, सर्विसेज का तो होगा नहीं. ये गुड्स सारा का सारा एग्जेम्प्ट है. एग्जेम्प्ट है. यस. और ये जो इनवर्ड सप्लाई हो रहा है, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो रहा, सर्विसेज में ट्रैक्टर लिया या फिर और सीड टेस्टिंग लिया, सॉइल टेस्टिंग का, ये सारा ऑपरेशन जो कर रहा है वो सारा का सारा क्या है? एग्जेम्प्ट है. गुड्स में अगर आते हैं तो गुड्स में वो सीड यूज करता है और मशीन यूज करता है, पेस्टिसाइड्स यूज कर सकता है, फर्टिलाइजर यूज करता है. ये सब एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है? टैक्सेबल. तो पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर तो टैक्सेबल है. कुछ चीजों को एग्जेम्प्ट भी करेंगे वो, तो देखना पड़ेगा ना, गुड्स का हिस्सा है. तो ये एग्जेम्पशन की बात है. ठीक है. अब आप यहां पर आइए, ये जो आउटवर्ड सप्लाई गुड्स है ये एग्जेम्प्ट कर दिया गया. ये सारे गुड्स एग्जेम्प्ट नहीं है, कुछ गुड्स टैक्सेबल तो है. यस. अगर कुछ गुड्स कमर्शियल क्रॉप्स वगैरह टैक्सेबल है. हाँ, जैसे कॉटन है, टेबेको भी तो फार्मिंग से ही आ रहा है, ये तो टैक्सेबल है ना. तो अगर टैक्सेबल है और इसका टर्नओवर मान लीजिए 20 लाख रुपए से ज्यादा हो गया, तो इसको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट बन जाएगी. यस. इसको तो रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं है, इसको तो रजिस्ट्रेशन से बाहर रखना है. तो ये जितना भी टैक्सेबल हो रहा है इसको आरसीएम में डाल दिया. कैश्यू नट्स वगैरह वगैरह. यस. समझ में आ रहा है आपको? तो इस पूरे सिस्टम को, और ऑब्वियसली सेक्शन 23 में लिख भी दिया कि इनको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है भी नहीं. ठीक. अब आइए, इसको ध्यान में रख के ये डेफिनेशन पढ़िए.
Definition of agriculturist should not be limited to those who cultivate the land personally एक मिनट, as सॉरी एक चीज और याद आ गई। Yeah. एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कैसे होती है? ये जो लैंड है ये किसका है? इंडिविजुअल का है, पार्टनरशिप फर्म का है या कंपनी का है? individual, इंडिविजुअल का है। ये इंडिविजुअल अमीर है या गरीब है? गरीब, दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है ना? हाँ। अगर ये बहुत अमीर है, जैसे पंजाब के कुछ एग्रीकल्चरिस्ट हैं, तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग क्या करते हैं? ये एम्प्लॉय रखते हैं हाँ। और इसमें खेती करवाते हैं, ठीक बात है। और एम्प्लॉय को कहते हैं कि कुछ शेयर तुम भी रख लेना क्रॉप्स के रूप में, पैसा मत लेना, या कैश 10,000 लेना और जितना भी कल्टीवेशन हुआ उसका 10% तुम रख लेना। ऐसा भी होता है या नहीं होता? तो इस खेत जो खेती कर रहा है वो ये लेबर कर रहा है या जो अमीर किसान है वो कर रहा है? लेबर कर रहा है। तो एग्रीकल्चरिस्ट कौन है? अमीर किसान है या जो लेबरर है? बेसिकली लेबरर है। तो एग्रीकल्चरिस्ट के डेफिनेशन में ये लेबरर आएगा या नहीं? सॉरी, ये अमीर किसान आएगा या नहीं आएगा? अमीर किसान आएगा। वो डेफिनेशन में आप पढ़ेंगे, आपको मिलेगा भी। ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट के 3 पार्ट में बनाए हुए हैं उसके। दूसरा, अगर गरीब है तो खुद ही खेती कर रहा है, वो तो है ही एक फार्मर। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। फिर कभी कभी क्या होता है कि एक मेरे पास गांव में एक लैंड है और मैं दिल्ली में नौकरी कर रहा हूँ, मुंबई बेंगलोर ये सब में नौकरी कर रहा हूँ, लैंड ऐसे ही पड़ा हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको लीज पे दे देते हैं, पट्टे पे। हाँ, लीज पे देते हैं। कहीं पट्टे बोलते हैं, आप क्या बोल रहे हैं? पट्टे ही बोलते हैं, यहाँ पे लीज बोल देते हैं। हाँ, पट्टे। अच्छा, लीज। महाराष्ट्र में बटाई बोलते हैं। महाराष्ट्र में बटाई बोलते हैं। बटाई जी, बटाई, ओके, बटाई बोलते हैं। तो सबका अपना अपना, लेकिन बेसिकली ये क्या है? तो ये जो लीज पे दे रहा है जो बंदा, क्या वो भी एग्रीकल्चरिस्ट है या नहीं है? हाँ है। एग्रीकल्चरिस्ट। ये भी एग्रीकल्चरिस्ट है, जो पट्टे पे लिया वो भी एग्रीकल्चरिस्ट है। ठीक है, तो इस सब को ध्यान में रखिए और आप पढ़िए। सर, सॉरी टू इंटरप्ट, एग्रीकल्चरिस्ट क्या डॉक्यूमेंटेशंस पे कुछ डिफाइन भी हो सकता है? जैसे अभी लैंड ओनर या उसके भी, इज देयर एनीथिंग ऑन दैट? 7-12 रहते हैं ना। देखिए, डॉक्यूमेंट्स पे तो सिर्फ लैंड डिसाइड हो सकता है वो एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं। हाँ, हाँ, बाकी कुछ बाकी जो मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, यानी कि कोई इंडिविजुअल है या नहीं है, उसके तो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखने से ही पता लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एग्रीकल्चर डॉक्यूमेंट्स पे बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं बोल के दे विल यूज दैट डॉक्यूमेंट्स इवन दो दे आर नॉट एग्रीकल्चरिस्ट, एज यू सेड। फिर से कहिए अपना सवाल, मुझे समझ में नहीं आया। एग्रीकल्चर डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या हुआ? किस चीज का डॉक्यूमेंट? यहाँ पे पानी बोलते हैं, पानी मतलब एग्रीकल्चर लैंड का ओनर पानी बोलते हैं। वो एग्रीकल्चर लैंड ओनर्स को इधर बहुत बेनिफिट है कर्नाटका में। हाँ, वो बेसिस पे उनको रिड्यूस रेट ऑफ लोन मिलता है, इसलिए तो एज यू सेड वो एक्चुअली काम कहीं पे करते रहते हैं और लेट आउट भी कहीं पे करते रहते हैं। यस, हाँ, मतलब बेसिकली डॉक्यूमेंट किसका हो गया? लैंड का हो गया। ठीक है, लैंड का डॉक्यूमेंट हो गया। ठीक है, चलिए पढ़िए यहाँ से अब। Definition of agriculturist should not be limited to those who cultivate the land personally, as small landlords might give their land to other rights farmers for cultivation. The Honorable Deputy Chair Minister of Delhi observes that tenancy was quite common in India, and to make them taxable under GST would be a very big decision which needed to be discussed. The Honorable Minister from Uttar Pradesh suggested that the definition of agriculturist should be a broad one. The Honorable Minister from Karnataka observes that while tenant farming was widespread, most states had law against tenancy. He therefore posed a question whether tenancy could be legalized under the model GST law. देखिए, समझिए एक मिनट। ये मुझे बताइए, कौन सा स्टेट
है लॉ अगेंस्ट टेनेंसी? क्या पट्टे पे नहीं दे सकते? कहाँ नहीं, से ऐसा है? कुछ ऐसा कुछ नहीं है कर्नाटका में। कर्नाटका में नहीं है। गुजरात? जिनेश जी कोई आइडिया? उत्तर प्रदेश में किसके बारे में सर में थोड़ा बात है? ये एग्रीकल्चर लैंड आप पट्टे पे नहीं दे सकते, ऐसा किसी स्टेट का लॉ है क्या? So Jammu and Kashmir, I think so. हम दे Jammu and Kashmir. जम्मू एंड कश्मीर, ओके ओके, हम दे सकते हैं। आप दे सकते हैं। और कोई? महाराष्ट्र? दे सकते सर, दे सकते। साउथ इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है सर। कुछ नहीं है, ओके ओके। अच्छा, ये अगर पट्टे पे देना एग्रीकल्चर के डेफिनेशन में लिख देते हैं वो, क्या तो जीएसटी लॉ स्टेट के लॉ को ओवरराइड कर देगा और लीगलाइज हो जाएगा वो? मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। अभी क्रिप्टो करेंसी को टैक्स किया गया इनकम टैक्स में, यस तो क्या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना लीगलाइज हो गया टैक्स के कारण? यस नहीं हुआ, नहीं हुआ, हाँ। बिल्कुल नहीं हुआ। ये तो पार्लियामेंट में भी डिस्कशन हुआ था कि वी आर, if we tax cryptocurrency in income tax, it does not mean that it has been legalized. Income can be legal or illegal. Smuggling activity पे टैक्स लगता है या नहीं लगता इनकम पे? लगता है। तो क्या स्मगलिंग लीगलाइज हो गई? नहीं। नहीं हाँ। नहीं नहीं। हाँ, वैसे ही है ये। चलिए यहां से पढ़िए। He Okay. therefore, हाँ, he therefore pose a question whether tenancy could be legalized under the model हाँ, GST law. तो नहीं हो सकता है ना? हाँ, आगे। हाँ. The Honorable Chief Minister of Puducherry observes that sharecropping was शेयर क्रॉपिंग prevalent. शेयर क्रॉपिंग है, मतलब जो मैंने हाँ. अभी आपको बताया, रेवेन्यू शेयर कर रहा है, Percentage. 10%, हाँ 10% शेयर तुम्हारा हो जाएगा इस तरह से। Was prevalent in various states and this should not be taxed. और टैक्स भी नहीं हो रहा, मैंने आपको बता ही दिया। The Honorable Minister from Haryana observes that the agriculture sector was highly stressed. The land holdings were small and therefore no restrictions should be put on the agriculture sector and even allow contract farming, and that Haryana was very soon coming up with the Tenancy Act in line with the new Tenancy Act of Punjab, which allowed contract farming by large food processing industries where the primary production was at the farmers level. ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है? कहिए। फार्मर्स वो क्रॉप ग्रो करने के लिए या कंपनीज वगैरह के लिए रेंटल बेसिस पे यस करते हैं। मान लो पेप्सी फार्मर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, भैया इतने केजी आलू मुझे हर साल या हर महीने या हर दिन चाहिए, उसके कॉन्ट्रैक्ट पे रह गया। अब फार्मर का लुकआउट है कि वो कैसे करेगा। ठीक है, आगे। He also suggested including dairy. Dairy अच्छा, farming. एक बात बताइए, एग्रीकल्चर के डेफिनेशन में डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग या सिल्क निकालना, किससे, सेरिकल्चर, ये सब एग्रीकल्चर के डेफिनेशन में इंक्लूडेड है या नहीं है? Yes, it is included. Yes, it is included. Now, एग्रीकल्चर का बेसिक डेफिनेशन क्या है इनकम टैक्स में, पता है आपको? हाँ। 2(1). जो भी जमीन से निकले वो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। जो भी जमीन से, क्रॉप्स होता है वही जमीन से नहीं। हाँ, लेकिन आप पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे, डेयरी फार्मिंग करेंगे, उन सब पे इनकम टैक्स है। लगता है या नहीं लगता? जी, है ना? मछली पकड़ के बेचेंगे, इन सब के ऊपर इनकम टैक्स है। करेक्ट? अब आइए जीएसटी। जीएसटी में एग्रीकल्चर का डेफिनेशन बहुत ज्यादा वाइड है। उसमें जमीन से जो निकल रहा है वो तो एग्रीकल्चर है ही, जानवर से भी कुछ प्रोड्यूस हो रहा है वो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी का हिस्सा, वो सब में एग्जेम्पशन है। और ये सर्विस टैक्स के जमाने से है। पढ़िए यहां से। He also suggested including dairy farming, poultry farming, and cutting of grass in the definition of agriculture, as it was in. Cutting of grass is agriculture. Yes sir. आज के डेफिनेशन। Yes sir.
ग्रास आप खुद उगाते हैं या अपने आप उगता है? अपने आप। उगा अपने आप अगर उगता है तो वो एग्रीकल्चर के डेफिनेशन में नहीं है। उगाते अगर उगाएंगे तब है। अब जंगल में गए, लकड़ी काट के ले आए, बोला सर एग्रीकल्चर है, नो, that's not That's not. agriculture. है ना? ठीक है। पढ़िए आगे। The cutting of grass in the definition of agriculture, as it was important to keep primary agricultural production activity out of the tax net, irrespective of who carried out. एक मिनट। हाँ. ये प्राइमरी एग्रीकल्चर और सेकेंडरी एग्रीकल्चर मतलब जिसको हम लोग प्राइमरी ऑपरेशन बोलते हैं और दूसरा सेकेंडरी ऑपरेशन बोलते हैं। प्राइमरी ऑपरेशन जो जमीन पे आप काम करते हैं, है ना, खेती करना, सीड्स लगाना, बाकी फर्टिलाइजर देना, ये सब जमीन पे हो रहा, दीज आर प्राइमरी ऑपरेशन। जब क्रॉप्स उग जाए, उसको कटिंग के बाद जो क्रॉप्स के ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, दैट इज सेकेंडरी ऑपरेशन। साफ करना, पैकिंग करना, साफ करना, ये सब है। तो ये कह रहे हैं प्राइमरी को तो आपको एग्जाम करना ही है। अब मुझे एक बात बताइए, आज के डेट में क्या सेकेंडरी ऑपरेशन भी एग्जाम है या नहीं है? मतलब फार्मर किसी को बुला लिया, बोला सर मेरे लिए पैकिंग कर दो, फार्मर किसी को बुला लिया, बोला मेरे लिए कटिंग कर दो, फार्मर किसी को बुला लिया, मेरे लिए साफ कर दो, तो ये सब इनवर्ट सप्लाई है या नहीं है? इनवर्ट सप्लाई फॉर द सेकेंडरी ऑपरेशन ये एग्जाम्प्ट हो गया या टैक्सेबल होगा आज के डेट में? ये सब एग्जाम्प्ट है, ये सब एग्जाम्प्ट है, ठीक है। और किसके लिए एग्जाम्प्ट है? जिसने प्राइमरी ऑपरेशन किया उसी के लिए सेकेंडरी ऑपरेशन एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर मैं राशन की शॉप खोल लेता हूं, उसमें मैं दाल चावल बेचता हूं, किसी को बुलाता हूं कि मुझे साफ कर दो, तो मैं सिर्फ सेकेंडरी ऑपरेशन कर रहा हूं, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। वो इनवर्ट सप्लाई टैक्सेबल हो जाएगा, ये याद रखिएगा। पढ़िए यहां से। Okay, primary agricultural production activity out of the tax net, irrespective of who carried out such activity, whether a person, HUF, a firm, a private limited company, etc. और आज के डेट में एग्रीकल्चरिस्ट कौन है? इंडिविजुअल और HUF है। फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर नॉट एग्रीकल्चरिस्ट, डेफिनेशन में नहीं है, आप पढ़िएगा। The Honorable Minister from Punjab supported the view of Honorable Minister from Haryana. He further observes that the definition of agriculture should be very wide and informed that his state had sent a definition for agriculturist which read as follows: means a person not being a company, a firm, a limited liability partnership, anybody corporate incorporated by or under the law of a country outside India involved in the operations of agriculture either. खुद से करे या अपने फैमिली मेंबर से करवाए या हायर वेजेस पे करवाए या फिर लीज पे करवाए, सारा कवर कर लिया ना। अब इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा नॉट ए कंपनी, इसका मतलब कौन कौन इंक्लूड हो जाएगा? इंडिविजुअल और HUF। क्या है सर? थ्रू एनी यूजर फ्रक्चुरी, यही पट्टे पे देना, मॉर्गेज, लीज तो होता ही है, वो तो यूजर फैक्ट्री लीज। इसका डेफिनेशन देखिए, आप गूगल कीजिए, मुझे तो नहीं, लीज से रिलेटेड होगा कुछ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हो सकता है। ओके, यहां से पढ़िए। The Honorable Minister from Uttar Pradesh suggested to add pisciculture and animal husbandry in the definition of agriculture. The Honorable Minister, the Honorable Minister from Telangana suggested keeping poultry and dairy as a part of definition of agriculture. ठीक है, ये भी है। That a company that entered into a tenancy agreement should get registered and pay GST. अब देखिए, ये नया कहानी है, गुजरात कह रहा है। He added that if tenancy was illegal in a state, it could not be legalized in GST. The Honorable Minister from Karnataka suggested that if tenancy farming was legal in the state, the definition of agriculturist could include sharecropping in that state. The secretary stated that the smaller dairy farmers, etc., would
enjoy the exemption threshold. अब देखिए एक बात समझिएगा, एग्रीकल्चरिस्ट के डेफिनेशन में सिर्फ लैंड एक्टिविटी आ रहा है, इन एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन देखेंगे तब उसमें सारा कुछ आ रहा है। हाँ। ये एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, द कंपनी दैट एंटर्ड इनटू अ टेनेंसी एग्रीमेंट शुड गेट रजिस्टर्ड एंड पे जीएसटी। ये क्या है? मान लीजिए फार्मर है, वो और ये कंपनी company को है। he has leased the land. सर टू ऐड वैल्यू एडेड, मैंने एक अपने आर्टिकलशिप में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट किया था, तो उसमें दैट कंपनीज मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज वाज टू डू यू नो, वो सीड डेवलप करते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। अच्छा, हाँ, दे वो ऑलमोस्ट एवरी दे विल ग्रो द सीड टू सर्टेन एक्सटेंट एंड दे विल सेल इट। हाँ, फार्मर्स विल कम एंड बाय दैट सीड्स एंड दे विल फ्लो इन देयर फार्म। हाँ, तो शायद वो हो सकता है सर, उसके बेसिस पे जो वो कंपनी कर रही है उसके नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं, ये चीज नहीं होती, इसका तो आउटवर्ड सप्लाई के बेसिस पे रजिस्ट्रेशन ले रहा है। अच्छा, जब कंपनी अगर ये इसके लैंड को ले रही है और ये इसको पैसा दे रही है तो कंपनी के लिए तो इनवर्ड सप्लाई है, हाँ, है ना? तो वो ये कह रहे हैं इसके ऊपर आरसीएम लगा दो। आप मुझे एक बात बताइए, लैंड को अगर मैं किराए पे देता हूं तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज? सर्विसेज। सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। फार्मर ने बेसिकली लैंड किराए पे दिया है कंपनी को, तो इसके ऊपर जीएसटी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? तो फार्मर तो ऐसे ही एग्रीकल्चरिस्ट, इसको डेफिनेशन से सेक्शन 23 से बाहर कर दिया गया। कंपनी आरसीएम पे चार्ज करेगा। एक मिनट, सेक्शन 23 से फार्मर को बाहर कर दिया गया। कंपनी इस फार्मर से जो लैंड किराए पे लिया है फॉर डूइंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, इस पे आरसीएम का कोई नोटिफिकेशन है? नहीं है, मैंने तो नहीं पढ़ा है। तो बेसिकली दिस इनवर्ड सप्लाई इज एग्जेम्प्टेड। मतलब एग्जेम्प्टेड क्या है? फार्मर टैक्स देगा नहीं, इसके जब फार्मर आरसीएम है नहीं तो फार्मर को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए था, फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया बिकॉज इज एन एग्रीकल्चरलिस्ट, तो इस पे तो टैक्स लगा ही नहीं। यस और नो? पूरा बात समझ में आ गई आपको क्या कहना चाह रहा था? एक फार्मर कॉन्ट्रैक्ट फार्मर के बेसिस पे या पट्टे पे अगर कोई लैंड किराए पे देता है कंपनी को या किसी को भी, तो फार्मर इज डूइंग आउटवर्ड सप्लाई, कंपनी के लिए इनवर्ड सप्लाई है। फार्मर अपने आप को रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं करवाया बिकॉज ही इज एन एग्रीकल्चरिस्ट, और अगर एग्रीकल्चरिस्ट है, ही इज नॉट सपोज टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड, नॉट सपोज टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड, देयरफॉर ही विल नॉट पे टैक्स। और आरसीएम में कंपनी को देना चाहिए, आरसीएम का है नहीं। किसी को कुछ कहना है इस पे? तो अप्लीकेबिलिटी कहाँ पे आएगा सर? वही पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, मतलब जैसे आप कह रहे थे अभी प्रीवियस इस पे फार्मर को तो एग्जेम्प्टेड है, कंपनी आरसीएम नहीं कर सकती बिकॉज प्रोविजन में नहीं है। करेक्ट। हाँ, तो वो ऑरिजिन कहाँ है? वो सर्विसेज या टैक्सेबल सर्विसेज, कल कोई अगर उठ सकता है तो ऑरिजिन डिसाइड करना, प्लेस ऑफ सप्लाई तो हम लोग डिसाइड कर लेंगे आईजीएसटी से। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू सर, आई एम टॉकिंग कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। ऑरिजिन से मतलब क्या मतलब हुआ आपका? ऑरिजिन जो जैसे सर्विसेज हो गया, इनपुट सर्विसेज जो ले रहे हैं उसके लिए वो टैक्सेबल रहेगा या आरसीएम में लायबल रहेंगे? नहीं रहेंगे क्योंकि है नहीं आरसीएम का नोटिफिकेशन। हाँ हाँ, ओके सर। कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? पोल्ट्री फार्मिंग। जो कंपनी, हाँ हाँ बोलिए। एक जगह लिखा है ना सलामी पगड़ी, ये सब अगर हम इंडस्ट्रियल लैंड, इंडस्ट्रियल लैंड के लिए। हाँ, बस वही है और कुछ हाँ नहीं। हाँ,
और कहीं नहीं है, ठीक बात है। अब ये सेक्शन 23 पर्सन्स नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड। बाकी डेयरी फार्मिंग वगैरह वगैरह सबको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक बात है। अब एग्रीकल्चरिस्ट का अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में ही है, मुझे लग रहा है। यस, agriculturist means an individual or HUF who undertakes cultivation of land by own labor, by the labor of family, or by servants on wages payable in cash or kind by, oh, इसमें देखिए पट्टा नहीं है इसमें। पट्टे पे अगर देंगे तो ये आउटवर्ड सप्लाई की जगह टैक्सेबल हो गया ये। सर, यस सर। ओन लेबर बाय लेबर ऑफ फैमिली बाय सर्वेंट और वेजेस ऑन वेज पेबल। चलिए, ये तो अच्छा हुआ हमने देख लिया, नहीं तो मेमोरी के बेसिस पे तो हम लोग कुछ और ही इंटरप्रेट कर लेते। अब अगर पट्टे पे दे रहे हैं, आप देख लीजिए, अब तो कहानी चेंज हो गई पूरी की पूरी। फार्मर अगर पट्टे पे दे रहा है, लीज पे दे रहा है, तो इसका आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल हो गया और इस फार्मर को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा। क्या कहते हैं? तो थ्रेशोल्ड सर्विस का आ जाएगा ना सर? हाँ, थ्रेशोल्ड सर्विस का आ जाएगा। So that is for farmer to individual to individual और कहीं किसी को भी दे, किसी को भी किसी को भी देने से they have to। ये इंडस्ट्रियल लैंड थोड़ी है। किसी को भी दे, वो नहीं कह रहा हूं मैं। हाँ, इंडस्ट्रियल लैंड थोड़ी है। अच्छा, हाँ, इंडस्ट्रियल लैंड में तो एग्जम्पशन है, इंडस्ट्रियल लैंड में एग्जम्पशन है। ये कैसे टैक्सेबल हुआ सर? आप शेड्यूल सेकंड खोले ना सर एक बार, उसमें क्या लिखा होगा? वो 4A 4A 4B 4C वहां जो है ना, जहां वो लिखा हुआ है लीज है, रेंट है, 30 साल है। तो शेड्यूल 2 तो हमें सिर्फ यही बताएगा ना कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ना 30 साल तो लिखा ही बनी है वहां पर। ये जो कहीं लीज लिखा है ना, मोर देन 30 ईयर कहीं नहीं, वो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। हाँ, मतलब है। अब वो सिर्फ उसके लिए है। बट वो एग्रीकल्चरल लैंड को एप्लीकेबल होगा सर? नहीं होगा। अजीत जी, तो एग्जम्पशन जो है वो इंडस्ट्रियल प्लॉट है। एग्रीकल्चरल लैंड का तो एग्जम्पशन है ही नहीं। एग्रीकल्चर लिखूं क्या? देखिए, क्या इसमें अगर हो तो हो, सर्विसेज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, इनवर्स सप्लाई, हाँ इसमें हो सकता है, देखते हैं। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर है तो बिल तो गया, हम लोग बस ही परेशान। Renting or leasing of agro machinery or vacant land with or without a structure incidental to its use. एग्जम्प्ट है, exempt है। मुझे याद था कहीं है वो एग्जम्प्ट में। चलिए, गुड। तो मिनट्स का डिस्कशन आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं, कल मिलेंगे।
लेकिन मैंने कल जो अजीत जी का मैंने नोटिस डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो थोड़ा सा रिसर्च मैंने और किया। थोड़ा मैंने भी किया सर, वो सीबीएसई में वो डीजीआरएम के बारे में थोड़ा देख रहा था। सीबीएसई, हाँ, व्हाट इज द पावर डीजीएम, तो डीजीआरएम, डीजीआरएम। तो आप अगर सीबीएसई वेबसाइट पे जाएंगे तो उधर एक इंटरनल सर्कुलर मिला सर मुझे। आई जस्ट वांटेड योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट। उसमें चैट बॉक्स में भेज दीजिए। हाँ, एक मिनट। हाँ, वो भेज दिए। तब तक जो मैंने निकाला वो दिखलाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। Sir, I have a query with regard to this agriculture income, what we discussed in the meeting now. कल करें डिस्कस। Sir, sir, one of my client is having turnover of more than 3 crores per year. What he is doing is he is having a group of farmers. He is dealing in certain kind of vegetables only tomato, beans and carrot.